Welcome to my maths class. Students, in my last lecture, we were doing sums of exercise 6.5 of maxima minima, and we also started simple sums of maxima minima in the statement form, and today we will carry on with the statement form questions. And I have started with the question number 17 of exercise 6.5. In this question, it is given that there is a square sheet with us, and that square sheet is of side 18 centimeter. ये हमारे पास एक square sheet है, and what is the measurement of its sides? 18 centimeter. It is to be made into a box without top by cutting a square from each corner. यानी कि इसके हर कॉर्नर से आपको एक स्क्वायर पीस कट करना है यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद इसका एक क्या बनाना है, आपको बॉक्स बनाना है इन फ्लैप्स को फोल्ड करके। व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ। ये साइड जो स्क्वायर साइड है, ये जो आपकी है, ये आपकी कितनी होनी चाहिए, कितना काटे हम कि ये जो आपका बॉक्स बने उसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो। यानी मैक्सिमाइज किसे करना है, वॉल्यूम को करना है हमें, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन है ऐसे कि ये एक स्क्वायर शीट है हमारे पास, ठीक है। सपोज इसकी मेज़रमेंट है 18 सेंटीमीटर, ठीक। अब इसके हर कॉर्नर पर, जैसे मैंने ये आपको एक दिखाया स्क्वायर पीस, ऐसे ही हर कॉर्नर पर यहाँ पर ये स्क्वायर पीसेस हमें कट करने हैं। कैसे कट करने हैं, लेट मी शो यू इट बाय कटिंग। कि ये स्क्वायर पीस में आपने चारों कॉर्नर से ये स्क्वायर पीस कट कर दिया, ओके। और आपसे पूछा गया है, अभी ये पहले तो कट करके ये बॉक्स बनता है, वो पहले मैं आपको दिखाऊं कि कैसे एक ये बॉक्स बनेगा अगर हम ये स्क्वायर पीसीस यहाँ पर कट कर देंगे, ठीक है। ये देखिए, ये हमने कट किया, चारों कॉर्नर से मैंने स्क्वायर पीस को कट कर दिया। अब इसके बाद इसने बोला है कि ये जो फ्लैप्स हैं, ये वाले जो फ्लैप्स आए हैं, इनको आप फोल्ड कीजिए। देखिए मैं फोल्ड कर रही हूँ, देन वी विल गेट अ box, cuboidal box I am going to get. How? Please wait and look here how we will get a cuboidal box. And look here, this would be a cuboidal box. This is a cuboidal box. If we upfold these square pieces we have cut, after cutting these flaps are left, and if we upfold these flaps, then we are getting this, we have obtained this type of cuboidal box. And now the volume of this cuboidal box depends upon the square piece we have cut. According to question, what should be the measurement of this square piece, whatever we have cut from here, so that the volume of this cuboidal box becomes maximum? Is it clear? So in this question, what I have done, look here, I have taken, because I don't know what should be the measurement of this square piece which I have to cut from each corner, I have taken its measurement is x. Okay, as it was told that the side of the square was 18 centimeter, I am cutting from both ends, I am cutting x, and x means 2x I am cutting. So what it would be, the remaining one? The remaining one, it would become now, look here, earlier suppose it was 18 centimeter, x I have cut from here, x I have cut from here. So what it would be, 18 minus 2x. So this is 18 minus 2x, 18 minus 2x, 18 minus 2x, 18 minus 2x. So अगर हम ये देखो, अगर इस बॉक्स को देखें तो इसका लेंथ और ब्रेड्थ तो 18 माइनस 2x हो गया, और जो इसका हाइट है जो आपने कट किया है x किया कट, तो हाइट इसका x हो गया। दैट आई हैव रिटन, लेंथ इज 18 माइनस 2x, ब्रेड्थ इज 18 माइनस 2x, and height is your x centimeter. So volume of the box, because it is a cuboidal box, so volume will be length, breadth, height, and volume, put the values 18 minus 2x, 18 minus 2x into x.
it is 18 minus 2x whole square into x. I have simplified this a minus b whole square and I have multiplied it with x. So after this, after simplification, I got this is your v, volume of the box. Now I have to maximize this volume, so that's why I will differentiate it, because we know to which we have to maximize or minimize, we differentiate that function. So I have to maximize volume, so I will differentiate this. After differentiation, I have received this 324 plus 12x square minus 72 into 2 means 144x. Next step, to get the critical point where this maximum is coming or minimum point comes, that is the critical point that we get by putting this dv by dx is equal to 0. And after simplification, we have received these two values of x. One is 9, the other one is 3. Students, if we put this value of x 9 here, so what would be the length? 0. So that is impossible. So that's impossible, therefore discarded. So we will not consider this. So now come to, this is our possible value of x. Now we have to check at this value, means when x will be 3 centimeter, then your volume will be maximum or minimum. We want to check that. For that, for checking whether we are getting maximum or minimum, what do we do? Second order derivative test. तो हम क्या करते हैं, जो भी dv by dx is equal to 0 से पहले, यानी कि dv by dx फाइनल आया है, we will differentiate once again it to get the second order derivative, and that is because this derivative of 324 is 0, its derivative is 24x minus 144. Now we want to check at this point the volume will be maximum or minimum. ये critical point आया है, तो हमने क्या किया, x की वैल्यू 3 हमने यहाँ पर पुट किया. तो we have to just check the sign of this second order derivative at this point 3. तो मैंने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का साइन यहाँ पर देखा 72 माइनस 144. नो नीड टू सिंप्लीफाई बिकॉज आई नीड टू चेक द साइन एंड इट्स वेरी क्लियर फ्रॉम हियर दैट 144 इज minus 144 is bigger than plus 72. Therefore the sign would be less than 0. It would be negative. And when the sign of the second order derivative at the given particular critical point comes less than 0, it means that function, means this volume is maximum. Volume is maximum when this critical point x is equal to 3. तो ये आपका, वैसे तो हमें यही पूछा गया, लेकिन अगर आपको इसका लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों डायमेंशंस आपसे पूछी जाएंगी, तो दैट ऑल्सो यू कैन कैलकुलेट दैट दिस इज़ योर लेंथ, दिस इज़ ब्रेड्थ एंड दिस इज़ हाइट. अब इसमें चलो ये तो हो गया. अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये आपका जो यहाँ पर तो स्क्वायर आपको गिवन था, सेम क्वेश्चन है दैट यू आर टू ट्राई योरसेल्फ. हाँ, उसमें बस एक चीज़ का फ़र्क है. 18th क्वेश्चन में लेंथ एंड ब्रेड्थ 45 एंड 24 उनकी मेजरमेंट दी है. सपोज ये 45 है और ये 24 है, तो आपका लेंथ कितना रह जाएगा, 45 माइनस एक्स यहाँ से हटा देंगे तो 2x, और ये आपका 24 है तो 24 माइनस 2x. तो अब इस केस में आपका हो जाएगा 45 माइनस 2x, 24 माइनस 2x, वॉल्यूम यही होता है. तो आप यह क्या करेंगे, 45 माइनस 2x इंटू 24 माइनस 2x इंटू x. अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना है अपने आप ही. तो ट्राई दिस क्वेश्चन योरसेल्फ एंड फाइंड आउट द आंसर. हाँ जी स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन नंबर 19 it has been given, it is asked that show that of all the rectangles which are inscribed in a given fixed circle, this time you have been given the circle is fixed. सर्कल फिक्स करने का मतलब उसका रेडियस फिक्स कर दिया, तभी तो सर्कल फिक्स होगा ना. तो फिक्स्ड सर्कल के अंदर इफ़ यू इंस्क्राइब रेक्टेंगल्स, डिफरेंट रेक्टेंगल्स, तो उस टाइम पर स्क्वायर हैज़ द मैक्सिमम एरिया. देखो अगर हमने ये फिक्स हमें आपको एक सर्कल दे दिया, ठीक है. अब अगर आपको बोला जाए रेक्टेंगल बनाओ, एक रेक्टेंगल आप यहाँ बना दोगे इसका, है ना, बहुत सारे, मतलब आप अगर सपोज करो देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, और हमने क्या किया, उसको सबको एक सेम रेडियस का सर्कल दे दिया और सबको बोला भाई इसमें आप सभी इसकी बाउंड्री को टच करते हुए कॉर्नर पॉइंट लेके आप इंस्क्राइब कीजिए क्या, रेक्टेंगल. तो सबकी मेजरमेंट अलग होगी, कोई ऐसे बनाएगा, कोई ऐसे बनाएगा, है ना.
तो सबका अलग अलग होगा। तो वो कह रहा है कि सबके एरियाज भी रेक्टेंगल्स के अलग होंगे, लेकिन वो वाला रेक्टेंगल जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ सेम होती है, यानी कि जो क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है, बिकॉज स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल ना, स्पेशल रेक्टेंगल जिसका लेंथ और ब्रेड्थ सेम होता है। तो वो रेक्टेंगल यानी कि जब वो स्क्वायर बन जाता है, देन एट दैट टाइम इट्स एरिया इज मैक्सिमम, दिस यू आर टू प्रूव। तो हमने पहले लिखा कि भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सर्कल इज गिवन, दैट मीन्स इट्स रेडियस इज फिक्स्ड, दैट इज अ कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमें ये पता करना है कि फिक्स्ड क्या चीज़ है। फिक्स्ड का मतलब है कांस्टेंट क्या है, हमारा इस टाइम रेडियस कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है। तो डायमीटर 2r हो गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए सर्कल में ये आपका एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, लेंथ इसकी x ले ली, ब्रेड्थ इसकी y ले ली, एंड यू नो ये आपका ये 90 डिग्री है। तो इसका मतलब ये सेमी सर्कल हो गया ना। सेमी सर्कल, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द सर्कल यू हैव स्टडीड दैट एंगल ऑफ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। तो अगर ये एंगल राइट एंगल बनता है तो इसका मतलब ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का मतलब ये क्या बन गया, डायमीटर बन गया। तो AC आपका 2r हो गया बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द सर्कल, वी नो इट। अब आपने क्या किया, ये वाला ट्राइंगल ले लिया, राइट ट्राइंगल ABC ले लिया, इसमें पाइथागोरस अप्लाई किया। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, पर आपका हाइपोटेन्यूज कितना है 2r, तो 2r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये आ गया आपके पास, एक रिलेशनशिप आपके पास आया x एंड y एंड r में। अब ये देखो, यही कांस्टेंट जो है इट वुड हेल्प अस टू कन्वर्ट वन वेरिएबल इनटू अनदर। मैंने तुम्हें बताया था कि वेरिएबल हमें एक ही चाहिए होता है, अगर दो वेरिएबल है तो ये कांस्टेंट ही हमारी हेल्प करता है टू कन्वर्ट वन वेरिएबल इनटू द अनदर फॉर्म। नाउ लुक हियर स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज टू बी मैक्सिमाइज्ड इन दिस क्वेश्चन। तो हम एरिया लिखा हमने, एरिया A इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ ब्रेड्थ की वैल्यू वी हैव पुट। अब there are two variables, so I am not going to differentiate it until and unless I convert it into one variable। तो मैंने क्या किया, y को I have tried to calculate from here, जो आपका कांस्टेंट था यह मेरी हेल्प करेगा अब यहाँ पर। तो y क्या आया आपका 4r स्क्वायर, यहाँ से माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट, आई हैव पुट इट हियर। लेकिन अब ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, वन थिंग मोर इम्पॉर्टेंट एंड की पॉइंट आई वुड से कि whenever there is a question of maxima and minima and you see that whatever the function is to be maximized or minimized by us, that is coming in the square root, then what to do, take square on both the sides. Okay, so by taking the square on both sides I have written this a square is equal to x square and this square root is removed. So just to get the rid of this square root sign, I have taken square on both sides. Now a square I have written it as z, a square को मैंने z लिख लिया। अब ये देखिए, now I am going to differentiate z with respect to x, तो ये आपके पास आया dz by dx इक्वल टू, क्योंकि अब now want to get the critical point where I am going to get the maximum value of z। z कहाँ से आया था, a square से, यानी कि z जहाँ मैक्सिमम होगा a square वहीं मैक्सिमम होगा, वहीं पर a मैक्सिमम होगा। तो मुझे z मैक्सिमाइज करना है, तो उसके लिए मुझे इसका डिफ्रेंसिएशन, z का डिफ्रेंसिएशन दैट मस्ट बी केप्ट इक्वल टू 0। तो 0 रखने के बाद मेरे पास आई एम ऑब्टेनिंग टू वैल्यूज ऑफ x, वन इज 0, द अदर वन आई एम गेटिंग x इज इक्वल टू रूट 2r। देखो x इज इक्वल टू 0 तो इम्पॉसिबल हो गया, क्योंकि अगर x 0 हो गया तो आपका रेक्टेंगल इम्पॉसिबल है, दैट्स व्हाई x इज इम्पॉसिबल। तो x की वैल्यू रूट 2r आ रही है। अब इफ आई पुट इट हियर इन 1 देन आई विल गेट द वैल्यू ऑफ y ऑल्सो। तो यू कैन सी हियर आई हैव ऑब्टेन बोथ x एंड y आर सेम, यानी जब x और y सेम हो गए यानी रेक्टेंगल सेम हो गया, रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ सेम होगी तो वो स्क्वायर बन जाता है। लेकिन तब मुझे क्या मिला, एरिया मैक्सिमम हुआ या नहीं हुआ, दैट आई हैव नॉट चेक्ड सो फार, सो आई एम गोइंग टू चेक दैट। उसको चेक करने के लिए मुझे मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा, इस पॉइंट पर क्या करते हैं, हम करते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपने लिया, क्योंकि मुझे z को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, तो डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1, सो 8r स्क्वायर माइनस 4 3 = 12x स्क्वायर, और x की वैल्यू आपकी कितनी है, रूट 2r। सो डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर एट दिस पॉइंट x इज इक्वल टू रूट 2r। सो 8r स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2r स्क्वायर। तो आप देखिए 8r स्क्वायर माइनस 24r स्क्वायर दैट इज लेस देन 0, बिकॉज माइनस 24 इज बिगर देन प्लस 8, तो दिस इज लेस देन 0, देयरफॉर
where would I write? Well, I should write it here. Okay, therefore z is maximum when x is equal to y is equal to root 2r. That is both of these are. Therefore z किससे आया था? a square से. a square किससे आया? a से. Therefore area is maximum when its length is equal to breadth. दोनों क्या बन गई? रूट 2r बन गई. Therefore when rectangle becomes square, its area becomes maximum. That was to be proved and we have proved it here. हाँ जी स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस. नाउ दिस टाइम सरफेस इज गिवन, मीन्स सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज गिवन टू यू एंड मैक्सिमम वॉल्यूम is such that its height is equal to the diameter of the base. Try to understand what is the question. इसमें दिया है कि एक सिलेंडर है जिसका आपको ना सरफेस एरिया गिवन है कि भाई इसको बनाने में कितना शीट यूज़ हुआ, उसका सरफेस एरिया यू नो इट वेरी वेल. ठीक, तो अब उसका वॉल्यूम मैक्सिमम तब होगा जब उसका डायमीटर और हाइट सेम होगा. इसको मैं और एक थोड़ा सा और क्रिएटिव तरीके से अगर समझाऊँ कि मान लो मैंने आपको 10 स्टूडेंट्स बैठे हैं और उन सभी 10 स्टूडेंट्स को सेम शीट दे दिया, पीसीस में दिया उनको, ठीक है, अलग अलग कट पीसेस दिए, लेकिन जो भी मैंने पीसेस दिए उनका सबका सरफेस एरिया सेम है, मिला के टोटल सरफेस एरिया उसका शीट का सेम है. और अब बोला कि आपने क्या करना है, इसको तोड़ो मरोड़ो जोड़ो जो मर्जी करो, लेकिन पूरा शीट ये यूज़ करके आपको सिलेंडर बनाना है. अब सभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जो सिलेंडर बनाएंगे उन सब स्टूडेंट्स के सिलेंडर का जो रेडियस और हाइट होगा वो अलग अलग होगा. कोई ऐसे बनाएगा, ठीक है, कोई ऐसे बना देगा, अगर उसका डायमीटर बड़ा कर देगा तो उसकी हाइट कम कर देगा, ठीक है, कोई इसका रेडियस और कम कर दिया तो ऑब्वियसली उसकी हाइट बड़ी कर देगा, क्योंकि शीट इज सेम. अब आपको इस क्वेश्चन में ये प्रूव करना है कि अगर सरफेस एरिया फिक्स्ड है तो वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगा, इसका होगा, किसका कब होगा, वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगा. ये वॉल्यूम मैक्सिमम तब होगा जब रेडियस जो है डायमीटर जो है वो हाइट के इक्वल होगा. अब देखो अगर इसका प्रैक्टिकल यूज़ देखें तो कितना ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज़ है. तो जितनी भी आपके कंटेनर्स, जो भी आपकी कंपनीज़ हैं जो कोई भी लिक्विड प्रोडक्ट बनाती हैं, तो वो ऐसे कंटेनर बनाना चाहेंगी जिसमें एक आपका जो क्या हो, वॉल्यूम जो है मैक्सिमम आए, ठीक है, वॉल्यूम मैक्सिमम फिल हो और उसमें आपका जो शीट है वो मिनिमम यूज़ हो और वॉल्यूम उसमें मैक्सिमम आए. इसी तरीके का तो वहाँ पर जो कैलकुलेशन किया जाता है कि सपोज करो कि मेरे पास इतना शीट है और अब मैं इस शीट का अगर सिलेंडर बनाना है तो क्या रेडियस और हाइट लेके उसका सिलेंडर बनाएं ताकि इसमें मैक्सिमम लिक्विड फिल किया जा सके या कोई भी जो प्रोडक्ट है उसमें मैक्सिमम फिल किया जा सकते. वहाँ पर ये मैथमेटिक्स यूज़ होगा. ठीक है, तो डेली लाइफ में हो गया ना मैथ्स का यूज़. अब हमने क्या किया, पहले तो लिखा कि सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज़ गिवन. जो चीज़ गिवन है वो फिक्स्ड है, दैट इज़ कांस्टेंट. कीप इट इन योर माइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है. उसके बाद रेडियस ऑफ द सिलेंडर हमने मान लिया r है, हाइट ऑफ द सिलेंडर हमने ले लिया h है. सरफेस एरिया बिकॉज इट इज़ नॉट स्पेसिफाइड हियर कि भी लेटरल है तो या टोटल है, और ऑब्वियसली यहाँ पर टोटल ही दिख रहा है. अब हमें जब नहीं मेंशन है तो टेक इट एज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, दैट इज 2πRh प्लस 2πr² एंड इट हैज़ बीन गिवन दैट इट्स फिक्स्ड. इट इज़ फिक्स्ड, तो ये यहाँ पर मैंने स्पेसिफाई आई हैव इट हियर दैट इट इज़ फिक्स्ड, मीन्स a इज़ योर कांस्टेंट. a will act as constant. Now volume of the cylinder is πr²h. Now students look here, there are two variables r² as well as h. But I will differentiate it only when I will convert this variable into the another. Either I will convert r to h or I will reduce this h to r. अब किसको करना चाहिए, which will be more comfortable, more convenient for me? Look here, students are here, it is r and here it is r². यहाँ दोनों हैं, तो it is means difficult to convert r into h. I am going to take
टू कन्वर्ट दिस h इंटू r इन टर्म्स ऑफ r, तो ये क्या होगा आपका a माइनस टू पाई आर स्क्वायर, a माइनस टू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू टू पाई आर एच, और यहाँ पर आपका ये टू पाई आर इट विल गो टू हियर, तो h इज इक्वल टू a माइनस h की जगह आई हैव रिटन a माइनस टू पाई आर स्क्वायर अपॉन टू पाई आर. This pi is cancelled with pi, r1 is cancelled with r is left a minus 2 pi r square upon 2. Now because this is 2 is constant, take it here, and r is not a constant, that's a variable. तो r को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए. This is our v. Now I have to differentiate it because it is to maximize the volume. मुझे इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, इसलिए मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगी. So I have differentiated r. देखो याद रखना a is constant, r is variable, 2 is constant, pi is constant. So we are differentiating it with respect to r only. So dv by dr is equal to r का differentiation with respect to r is r1, r cube का differentiation 3r square यानी कि 3r square into 2 pi is 6 pi r square. नेक्स्ट स्टेप हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना है. क्रिटिकल पॉइंट मीन्स व्हेन आवर वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम एट वन पॉइंट, वो हमें वैल्यूज़ निकालनी है. तो डी बाई डी आर इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि दिस हाफ ऑफ a माइनस सिक्स बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6 0. अब यहाँ से a की वैल्यू आ गई, लेकिन आप देखिए a की वैल्यू तो यहाँ से भी हमारे पास है ना. a की वैल्यू क्या थी 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर. सो वी कैन इक्वेट दीज टू. तो from here I have obtained h is equal to 2r. What does it mean? यानी कि height is equal to 2r means the diameter. Height is equal to diameter जब होगा उस टाइम पर हमें मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा. लेकिन मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा, how can we check it? By taking the second order derivative of the function जिसको हमें चेक करना है. तो इसका v का आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लीजिए, यानी कि इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट कीजिए. a is a constant, its derivative will be 0. ये मल्टीप्लिकेशन में constant, let it be as it is, and this is minus 6 pi into r square का डेरिवेटिव 2r, तो ये हो गया minus 12 pi r. तो ये माइनस साइन आ गया ना यहाँ पर, no need to put this. अब यहाँ पर सिर्फ साइन चेक करना होता है, that is less than 0. और जब भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज लेस देन 0, what does it indicate? That our given function of which you have taken the second order derivative, that is maximum. So it means अब ये less than 0 is showing that your v is maximum when h is equal to 2r, और यही हमें प्रूव करना था. हाँ जी स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन नंबर 21, अभी 20 और 21 में देखो, 20th क्वेश्चन में आपको क्या बोला था कि गिवन था सरफेस एरिया और वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना था. अब इस क्वेश्चन में रिवर्स है. इन दिस क्वेश्चन वॉल्यूम इज फिक्स्ड, वॉल्यूम फिक्स है, और आपको एरिया को मतलब यहाँ पर क्या करना है, मिनिमाइज करना है, एरिया मिनिमाइज करना है. ठीक है, सिलेंडर का ही आपको वॉल्यूम दिया हुआ है कि 100 क्यूबिक सेंटीमीटर है. अब बताओ हम सिलेंडर का रेडियस और हाइट यहाँ पर दिया हुआ है कि रेडियस का सिलेंडर और हाइट आप फाइंड आउट करो कि क्या होगा कि उसमें जो सरफेस एरिया है वो मिनिमम यूज़ हो उसका. यानी शीट जो बनाने के लिए उस कैन को, सिलेंड्रिकल कैन को बनाने के लिए जो शीट यूज़ हो वो मिनिमम एरिया की यूज़ हो. देखो ये बिल्कुल वही है जैसे कि प्रोडक्ट बनाया कंपनी ने और उसने एक क्वांटिटी फिक्स कर लिया कि मुझे 100 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है वो एक कंटेनर में डालना है. जैसे आपकी कितने कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं उनकी कैन्स आती हैं, फिक्स कर दिया उन्होंने. ठीक है, अब इसके बाद वो जानना चाहेंगे कि बताइए हम वो जो कैन बनाए सिलेंड्रिकल उसका रेडियस और हाइट हम कितना रखें कि हमें उस कैन को बनाने के लिए जो शीट चाहिए हो वो मिनिमम एरिया की हो, क्योंकि जब मिनिमम शीट यूज़ करेंगे तभी तो उनको प्रॉफिट होगा ना. ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, रेडियस ले लिया. अब ये देखो यहाँ पर वॉल्यूम फिक्स है, वॉल्यूम यानी पाई आर स्क्वायर, एच इज़ फिक्स्ड, दिस इज़ फिक्स्ड. ओके, विल मेक द यूज़ ऑफ दिस. ये 100 इज़ फिक्स्ड नाउ हियर, दिस इज़ कॉन्स्टेंट. अब रेडियस ऑफ सिलेंडर इज आर एंड हाइट आई हैव टेकन एच, और मिनिमाइज आई हैव टू डू दिस एरिया ऑफ द सिलेंडर. सो दैट्स वाई आई हैव रिटन इट ए. And what is the formula for the area of the cylinder? 2 pi r h plus 2 pi r square. Now there are two variables, one is h, the other one is r.
ठीक है। r और h दो वेरिएबल्स हैं, दोनों को हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, दोनों वेरिएबल्स हैं। तो वी नीड टू कन्वर्ट वन वेरिएबल इनटू द अनदर फॉर्म बाय मेकिंग द यूज ऑफ दिस फिक्स्ड क्वांटिटी। यहाँ से हम h को इजीली कर सकते हैं। h कैन बी रिटन एज 100/πr², दैट आई हैव डन हियर। ओके, सो पाई कैंसिल बाय पाई, दिस r is cancelled, so we are left with 200/r plus 2πr². Now I can see here 200, 2π, all these are the constants of variable is the only one that is r, so I can now differentiate it with respect to r. So dA by dr is equal to 1/r का differentiation minus 1/r² and 200r as it is plus 2πr² का differentiation 4πr d। अब इसको हमने क्या करना है, हमें डिफ्रेंशिएशन निकालने के बाद क्या होता है, सेकेंड स्टेप टू फाइंड आउट द क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट जहाँ ये मैक्सिमाइज हो रहा है या मिनिमाइज हो रहा है, ये क्या आपका एरिया जिसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें कैसे निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट, पुट इट इक्वल टू 0। सो दिस इज 4πr इज इक्वल टू दिस 200/r², it is giving us r³ is equal to 50/π, taking cube root on both sides, so r is equal to 50/π raised to power 1/3. This is the value of the r. लेकिन h नहीं निकला, उसने r और s दोनों निकालने के लिए बोला। तो कैसे निकालेंगे, वी हैव वन रिलेशनशिप हियर, सो आई विल पुट द वैल्यू ऑफ r हियर, यहाँ पर 1 में पुट करके आई कैन फाइंड आउट h ऑल्सो। सो h इज इक्वल टू 100/πr². What is the value of the r, 50/π raised to power 1/3 and square, don't forget to take this square. So power of power is multiply, तो 2/3 हो गया ये, 50 की पावर भी 2/3 और पाई की पावर भी 2/3, पाई is here also, pi is here also. So pi raised to power 1 minus 2/3, I have written it here, and 100 को I have split it 2 into 50. So 50 is here, this is 50 raised to power 1 and this is 50 raised to power 2/3, so I have written is 50 raised to power 1 minus 2/3, and pi is also pi raised to power 1 minus 2/3, so it becomes 50 raised to power 1/3 and pi also raised to power 1/3. So h is equal to 2 of this. So ये क्या आ गया, h is equal to 2 और ये क्या था r। पिछले क्वेश्चन में भी यही आया था ना आपके पास। तब हमें वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, तो वॉल्यूम मैक्सिमम होता है सिलेंडर का, या कह लीजिए एरिया मिनिमम होता है सिलेंडर का, किस कंडीशन में, व्हेन हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर। ये पता चल गया आपको, जब हाइट डायमीटर के इक्वल होता है उस टाइम पर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अभी ये तो मुझे नहीं पता कि मिनिमम है या मैक्सिमम है, वो तो तभी पता चलेगा जब मैं इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लूँगी। इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आई हैव कैलकुलेटेड, तो ये आपका पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव मीन्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ a is coming out positive. This implies a is minimum when your r is this and h is this. हाँ जी स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन नंबर 22 it is told to us that there is a wire and the length of this wire is total 28 meter, and this wire is cut into two pieces, and one piece is converted into a circle, and out of the other piece one square is made, and you are to find out from where it should be cut so that the area of combined area of circle and square should be the maximum. अब हमें एरिया को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। मैक्सिमाइज किसे करना है, एरिया को। तो सबसे पहले क्या है, एरिया सॉरी लेंथ ऑफ द वायर इज गिवन 28 मीटर। हमने सपोज किया कट किया यहाँ पर x मीटर पर कट लगा दिया, तो लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस x मीटर होगी, सेकेंड पीस की ऑब्वियसली रिमेनिंग लेंथ दैट इज 28 माइनस x होगी। अब हमने एक सर्कल बनाया जिसका रेडियस r था, उसका रेडियस अगर r है तो ये अगर ये जो x है, ये x है, इसी x का हमने ये सर्कल बनाया है, ठीक है। x जो कट किया हमने पीस उसका सर्कल बनाया, तो उसकी बाउंड्री की लेंथ x होगी। बाउंड्री मीन्स द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, 2πr आपका x के इक्वल आ गया। ओके, अब जो बाकी बची हुई आपके पास जो आपके पास वायर थी 28 माइनस एक्स, उस 28 माइनस एक्स का स्क्वायर बना दिया। तो अगर मैं स्क्वायर की साइड y मीटर लेती हूँ तो जो उसका पेरीमीटर है वो 28 माइनस एक्स हो जाएगा। पेरीमीटर अगर साइड y है तो पेरीमीटर 4y हो गया, तो पेरीमीटर 4y इज इक्वल टू 28 माइनस एक्स हो गया। अब कंबाइंड एरिया, दोनों का जो एरिया मुझे मैक्सिमाइज करना है वो है एरिया ऑफ द सर्कल प्लस एरिया ऑफ द स्क्वायर।
पाई आर स्क्वायर प्लस साइड का स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर। आर की वैल्यू फर्स्ट से निकाली हमने, आर की वैल्यू एक्स अपॉन 2 पाई, इसका स्क्वायर, वाई की वैल्यू यहाँ से निकाली है 28 माइनस एक्स अपॉन 4, उसका होल स्क्वायर यूजिंग 1 and 2। अभी हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद ये एक्स स्क्वायर हो गया, 4 पाई स्क्वायर हो गया, ये 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज 16। ओके, अब हम ए को क्योंकि मैक्सिमाइज करना है तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, पाई से ये पाई कैंसिल हो चुका है, ये 4 पाई। अब ये 2 बाहर, एक पावर कम, और 28 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, 16 कांस्टेंट है, लेट इट बी एज इट इज। ये -1 इधर आ गया, ठीक है, ये कैंसिल हो गया इससे, ये भी कैंसिल हो गया इससे, ये हमारे पास आया। तो अब इसके बाद क्रिटिकल पॉइंट कि किस पॉइंट पर, किस वैल्यू पर ये मैक्सिमाइज होगा एरिया, तो हमने dA/dx = 0 रखा, और उससे ये x/2 पाई माइनस 28 माइनस एक्स अपॉन 8 = 0 से हमारे पास ये आया। तो यहाँ से आपने x की वैल्यू निकाली, 4x भी इधर माइनस पाई x है तो इसको इधर ले गए, और यहाँ से x कॉमन करके x की वैल्यू निकाल ली। व्हेन वी हैव यूज्ड इट इन 2 में हमने रखा यहाँ पर x की वैल्यू को, तो आपके पास ये आया। अब आप इसको कैलकुलेट कीजिए, 4y = ये आपके पास 112 प्लस 28 पाई माइनस 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई आ गया, ये कैंसिल हो गया, और ये आपके पास आया y = 28 अपॉन 4 प्लस पाई। ठीक है, ये तो y आ गया, लेकिन हमें ये निकालने के लिए नहीं बोला था, हमें निकालने के लिए बोला था क्वेश्चन में व्हाट आर द लेंथ्स ऑफ द 2 पीसीस। तो एक पीस की x है तो दूसरे की 28 माइनस x है। अब ये 28, ये हम यहाँ पर लिखेंगे लेंथ ऑफ सेकेंड पीस। सेकेंड पीस क्या थी, दैट इज इक्वल टू सेकेंड पीस की लेंथ 28 माइनस एक्स। 28 माइनस एक्स ये कैलकुलेट हमें करना है यहाँ पर, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये आ गया आपके पास सेकेंड पीस की लेंथ 112 अपॉन ये आपकी सेकेंड पीस लेंथ है। लेकिन ये जो लेंथ आई आपकी फर्स्ट पीस की और सेकेंड पीस की, इससे मैक्सिमम आ रहा है जो आपके पास एरिया या मिनिमम आ रहा है, उसके लिए आपने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, x का डेरिवेटिव 1 अपॉन पाई माइनस फिर 28 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन 8, ये आ गया 1 अपॉन पाई प्लस 1/8, दैट इज पॉजिटिव। देयरफॉर एरिया इज मिनिमम। एरिया इज मिनिमम व्हेन योर first piece is 28 pi by 4 plus pi and second piece is 112 upon 28 plus 112 upon 4 plus pi। हाँ जी, अब इसमें एरिया आपको पता चल गया कि इस कंडीशन के साथ आपका जो एरिया होगा इन दोनों का वो कंबाइंड एरिया मिनिमम हो गया। तो इसके साथ ये डन। But still there are some questions which are left in this exercise. We will do those questions in our next lecture.